Today we will read next chapter in history, the Mughal Empire. In this chapter, we will read about the Mughal dynasty. And the first Mughal emperor was Babur, and he attacked on India in the year of 1526. After that, the Mughal dynasty emerged, and Babur was the founder of the Mughal dynasty, and he ruled over India from 1526 to 1530, and after that his son Humayun became the ruler of India from 1530 to 1539, and in the year 1539 Humayun fought in the battle of Chausa, and he was defeated by the Sher Shah Suri, and again he fought with Sher Shah Suri in the battle of Kannauj, and it is also called the Bar of Bilgram in the year of 1540. And Humayun disappointed after that, and he go away from India, and his son Akbar became the ruler of India in the year of 1556. So these all were the ruler of Mughal dynasty, and their name was Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. So many rulers became the emperor of India. But the first ruler of the Mughal Empire was Babur. And basically we read about this dynasty. But first of all, we read the backgrounds of the Mughal Empire. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible only short period of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed the structure of the administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort, Delhi, and it was the residence of the Mughal emperors. The Mughal was strong during the 17th century, okay, and he ruled over the all over the subcontinent, and he attacked on India in the 1526, and in the battle of Panipat, the first battle of Panipat won by Babur, and he fought against the Sikandar Lodi, and Ibrahim Lodi, and he was the ruler of Delhi. And after that, the Babur became the ruler of India, and he ruled over India to 1530. But in the 16th half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. Okay, but he ruled all over the subcontinent during the 17th century. So all the rulers of the Mughal dynasties expanded their rule, like the Babur, Humayun, Akbar. Akbar is the great emperor of the Mughal dynasty, and after Akbar or Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and the Aurangzeb was the very powerful ruler of the Mughal dynasty, and he expanded his rule all over the subcontinent. And today, when we see the Prime Minister of India, and on Independence Day, when Prime Minister addressed the nation of the Red Fort in Delhi, and it was the residence of Mughal emperors. Now we will read who were the Mughals. Mughals कौन थे? The Mughals were descendants of the two great lineages of rulers. From their mother's side, they were
descendants of Genghis Khan, and he was died on 1227. The Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Temur. Died in 1404, the ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Temur and himself. Take a look at figure 2, which is somewhat like a group photograph. And we are studying about the Mughals. First of who were the Mughals? मुगल कौन थे? तो मुग़ल जो है वो दो सबसे जो ग्रेट जो डिसेंडेंट थे रूलर्स के, उनमें जो मदर साइड से वो चंगेज़ खां के वंशज थे। चंगेज़ खां जिसने 1221 में भारत पर आक्रमण किया था, जो एक मंगोल शासक था जिसका शासन चाइना और सेंट्रल एशिया पर के हिस्से में रहता था। और फादर्स की तरफ से उनके जो सक्सेसर थे तैमूर जिसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। 1404 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये ईरान का शासक था। इराक को मॉडर्न डे टर्की जिसको कहा जाता है, यानी तुर्की जो वर्तमान युग में है, वहाँ का ये शासक माना जाता था। इसलिए मुग़ल जो है वो कॉल्ड मुग़ल और मंगोल है ना। मंगोल वर्ड से ही क्या निकला है? मुग़ल निकला है। और ये क्योंकि जो चंगेज़ खां की जो मेमोरीज़ हैं उनसे इसको जोड़ते हैं, क्योंकि चंगेज़ खां जो है जब भी भारत पर आक्रमण किया वो लूटपाट करता था, लोगों को मारना ही उसका काम था। तो वो कहीं ना कहीं उज़्बेक फैमिली से बिलोंग करता था। और जो मंगोल के कॉम्पिटिटर्स होते थे, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मुग़ल्स जो हैं वो क्या थे? वो अपने जो तैमूर एंसेस्ट्री थी या तैमूर को जो अपना पूर्वज मानते थे उस पर ज़्यादा उनको प्राउड होता था, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रेट एंसेस्टर थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा किया था 1398 में। पिक्टोरियली अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी जो वंशज रहे हैं उनको काफ़ी सेलिब्रेट किया है। और प्रत्येक जो रूलर था वो पिक्चर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो तैमूर और उसके पिक्चर दे रखा है फिगर 2 में, विच इज़ समवॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। ये जो ग्रुप फोटोग्राफ है इसमें आप देखेंगे ये मिनिएचर पेंटिंग है। ये 1702-1712 के बीच में तैमूर का। हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर्स। तैमूर इज़ इन द सेंटर एंड हिज राइट इज सन मीरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मीरान शाह कौन था? मीरान शाह जो था वो पहला मुगल एम्परर जो था बाबर, उसका कौन था? ग्रैंडफादर था। एंड देन अबू सैड बाबर्स ग्रैंडफादर, है ना। बाबर का जो ग्रैंडफादर था अबू, है ना, शहीद। एंड टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर एंड सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। ये कौन है? सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर का कौन था? ग्रेट ग्रैंडफादर था, ठीक है ना। एंड उमर शेख मिर्ज़ा, ही वॉज द फादर ऑफ बाबर। उमर शेख मिर्ज़ा जो था वो कौन था? बाबर का पिता था। मुगल एम्परर्स बाबर, अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तैमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट। इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो ये एक एंसेस्ट्री रही, ये इनके पूर्वज रहे हैं, ठीक है। तैमूर के ये अगल बगल जो बैठे हैं तो उनके जो सबसे पहले किसका नाम आता है? मीरान शाह का नाम आता है, जो तैमूर का था, है ना। तैमूर का सन कौन था? मीरान शाह था। और मीरान शाह बाबर का क्या लगता था? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जिसको कहते हैं ना। अबू शहीद जो था वो बाबर का ग्रैंडफादर था, उसका बाबा, है ना, बाबा जिसको हम कहते हैं। और तैमूर का जो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो था वो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर था, परदादा था। उमर शेख मिर्ज़ा कौन था? वो बाबर का पिता था। और बाबर को आप जानते ही हैं कि बाबर कौन था जिसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी भारत में। बाबर जो है 1526 में भारत आया था, है ना। तो उसने क्या किया? सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया था 1526 में। 1526 में
1526 जो है वो याद किया जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था? और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था, ठीक है। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, इब्राहिम लोदी उस समय कौन था? शासक हुआ करता था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हरा दिया और उसके बाद उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो 1526 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1527 में एक और युद्ध लड़ा उसने राणा सांगा के साथ, है ना। राणा सांगा जो थे उनके साथ उसका युद्ध हुआ था। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उनके साथ युद्ध हुआ था, है ना। और 1527 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, ठीक है। फिर 1528 में हुआ एक चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का भी युद्ध हुआ। एक 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके उसने 4 युद्ध लड़े हर साल, है ना। और चारों युद्धों में वो क्या हुआ? विजयी हुआ। 4 युद्ध लड़ने के बाद विजय हुआ तो उसने आगरा से लेके दिल्ली तक जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। दिल्ली से लेके आगरा पूरा क्षेत्र उसने कब्जा कर लिया था। 1530 में क्या हुआ? इसकी फिर मृत्यु हो गई, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। फिर उसके बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं वो शासक बना। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल सैन्य अभियान इसको कहा जाता है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, ठीक है, 1526 से 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, the seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. अभी मैंने ये बताया आपको कि बाबर जो है वो पहला मुगल शासक था जिसने 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर शासन किया था, है ना। और वो 1494 ईस्वी में कहाँ? फरगना की सिंहासन पर बैठा जब वह मात्र 12 वर्ष का था। और उसने जो है अपने जो एंसेस्ट्रल थे, अपने जो पूर्वज थे, है ना, जो कि कौन थे? मंगोल जो थे, मंगोल ग्रुप, अनदर जो है मंगोल ग्रुप हुआ करता था उज्बेक्स का। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डिंग ही सीज काबुल, 1504 में कई वर्षों के बाद उसने क्या किया? काबुल पे कब्जा कर लिया। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के युद्ध में, और दिल्ली से लेकर आगरा तक उसका कब्जा हो गया। Some of the major campaigns of the Mughals, study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms, the Sikh, and Mewar and Marwar. How was Humayun's relationship with Safavid Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign and हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन, ठीक है। तो जो मुग़ल सैन्य अभियान रहा, मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे कैंपेन्स जो है अभियान मुग़लों ने किए, तो उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने ये भी नोटिस किया है कि लंबे समय तक ये पैटर्न उन्होंने जारी रखा। और उन्होंने हमने ये भी नोटिस करेंगे, उदाहरण के लिए जैसे अफ़गान्स हुआ थे, है ना, अफ़गान जो होते थे वो मुग़ल जो अथॉरिटी थी उसको नुकसान भी पहुँचाते थे। और जो रिलेशनशिप रहा है मुग़ल्स के बीच में, अहोम्स के बीच में, सिख और मेवाड़ मारवाड़ के बीच में जो भी संबंध रहे उनके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। और हुमायूं का रिलेशनशिप रहा सफ़ाविद ईरान के साथ, वो अकबर से क्या डिफरेंट था, ठीक है, इनके बारे में। क्या जो गोलकुंडा और बीजापुर का जो एनेक्सेशन विलय हुआ औरंगजेब के शासनकाल में, है ना, डेक्कन का, उसके बारे में भी, है ना, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुग़ल एम्परर्स के बारे में दिया गया है। मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स बाबर के रहे। 1526 में उसने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराया, है ना, जो अफ़गान सपोर्टर्स था, पानीपत के युद्ध में हराया था बाबर ने। और 1527 में उसने राणा सांगा को हराया था जो कि राजपूत शासक था, ठीक है। खानवा में इसको हराया गया था। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, है ना। और चंदेरी के युद्ध में जो है 1528 में बाबर ने
मेदिनी राय को हराया था ना, मेदिनी राय उस समय एक शासक थे, उसको हराया था। और उसके बाद 1530 से 1540 हुमायूं रहा। हुमायूं डिवाइडेड द इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग द, है ना, तो ये पूरा पढ़ लेंगे। तो शेर खान जो था, जो चौसा में इसका युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है ना, शेर खान के साथ, और उसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें भी इसको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको दिल्ली छोड़ना पड़ गया, ठीक है। और 1555 तक ये दिल्ली से बाहर ही रहा। और फिर जो है 1556 में कौन सा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और द्वितीय युद्ध में जो है अकबर उस समय संरक्षक, अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, ठीक है, बैरम खान के नेतृत्व में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर मात्र उस समय जो है करीब 14 वर्ष का था जब उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिस्सा लिया था, और उसमें उसकी विजय हुई। उसके बाद दोबारा से मुगल डायनेस्टी जो है दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने शासन किया था। 1556 से लेके 1605, ठीक है। अकबर जो है बहुत ही एक शक्तिशाली शासक था और काफ़ी चतुर भी था, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें सारी डिटेल दी हुई है अकबर के बारे में, उसने क्या क्या किया था, इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। फिर अकबर के बाद जहांगीर हुआ 1605 से 1627 तक। 1627 में शाहजहां उसका पुत्र था, 1658 तक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल शासक हुए मुग़ल डायनेस्टी के, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स को पराजित किया था 1663 में, और इनके खिलाफ रिबेल भी हुआ था 1680 के डिकेड में। नॉर्थ वेस्ट में भी इन्होंने यूसुफजई के खिलाफ कैंपेन चलाया था, है ना। बहुत कुछ इन्होंने काम किए हैं, है ना। इसने, औरंगज़ेब ने बहुत कुछ काम किए थे। इसने शिवाजी को भी इंसल्ट किए थे, जिसके कारण शिवाजी को आगरा छोड़ करके भागना पड़ा था उस समय, है ना। तो इसकी कहानी आपको आगे भी पढ़ाएंगे हम, है ना, बताएंगे क्या क्या इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट, मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, है ना। उनके उत्तराधिकार का ट्रेडिशन क्या रहा मुगल्स का, जो भी उत्तराधिकारी बनता था। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिटर where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of coparcenary inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Follow the height and passes in table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of inheritance, and primogeniture or कोपैरसिनरी, ओके। तो मुग़ल ट्रेडिशन, जो मुग़ल परंपरा रही उत्तराधिकार की, उसमें देखें, उसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही क्या बनता था, शासक बनता था। जैसे अगर आप देखेंगे, बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं, हुमायूं को कौन था, अकबर, अकबर का बड़ा बेटा कौन था, जहांगीर, जहांगीर का था शाहजहां, शाहजहां का औरंगज़ेब, है ना। औरंगज़ेब नहीं था, ये ध्यान रखना। शाहजहां का बड़ा बेटा कौन था, शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, लेकिन दारा शिकोह को पराजित किया था औरंगज़ेब ने युद्ध में, तब अपने जो है सत्ता पर कब्जा किया था। लेकिन ज़्यादातर जो परंपरा रही है उसमें जो सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन होता था वही उसकी शक्ति का उपयोग करता था। यहाँ पे एक और टर्म आया, मुग़ल मैरिजेस विद द राजपूत, यानी मुग़लों ने राजपूतों के साथ शादियाँ भी की। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवा प्रिंसेस, जहांगीर की जो मदर थी वो कौन थी, ये कछवा राजकुमारी थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर, आमेर के जो राजपूत शासक थे उनकी पुत्री थी, है ना। मॉडर्न डे जयपुर जिसको कहा जाता है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज अ राठौर प्रिंसेस, और शाहजहां की जो मदर थी वो एक राठौर राजकुमारी थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर, है ना, जोधपुर के जो राजा थे उनकी पुत्री। मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुग़ल के अन्य शासकों के साथ भी क्या रहे हैं, संबंध रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।